Hello student, Jai Swami Narayan. Today our topic is methods of building an estimate. In previous lectures we study about the center line method and how to find out the quantities of the different items by using the center line method. Okay, then next method is separate wall method. In this method, the walls of the building are separated as long wall and short walls. The walls running in any one direction may be called as long walls, and the walls running in the perpendicular direction or transverse direction may be called as short walls. For this, imagine the plan at different levels or heights of the wall footings, such as foundation trench plan, foundation concrete plan of each footing of brickwork, etc. Then the length of long wall and the short wall for each walls are calculated separately. The length of long wall equal to center distance of the wall plus half width on one side and half width on the other side. That is center to center distance plus one width, which gives the length of long wall out to out. And multiply this with this length by breadth and height to get the quantity of any particular section or item. Therefore, the length of long wall is equal to center distance plus half breadth on one side plus half breadth on the other side. That means long wall is equal to center distance plus one breadth. The total length of short wall equal to the center distance of the wall minus one breadth, which gives the length of short walls, that is into in. Multiply this length by breadth and height to get the quantity of any particular section or item. Therefore, short wall is equal to center distance minus one breadth. So center to center distance minus one breadth. This process is adopted for finding out the quantities of the earthwork in excavation, foundation concrete, for each footing of the brick wall, for superstructure, etc. It will be noted that the length of long walls are gradually decreasing from the foundation to superstructure, while the length of the short walls are increasing. This method is simple and accurate. There is no chance of any mistake in the calculations. यहाँ पे हम एग्जाम्पल एक लेते हैं. इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिया है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 4.3 है. ओके, और आउट टू आउट डिस्टेंस कितना है 5.2 है. यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 3.3 है और आउट टू सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज दिस 3.3. ओके, तो हमें क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें दिया है 3.3. ओके, रूम डायमेंशन फॉर एग्जांपल हमारे पास 4/3 है. ओके, तो 4/3 है तो लेंथ कितना मिलेगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेंगे तो 4.3 और तो ब्रीथ में कैसे मिलेगा, तो 1 ब्रीथ ऐड करना पड़ेगा. दैट मीन्स 3.3 दूसरा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मिलेगा. तो अभी हमें क्या है अलग अलग लेवल पे, फॉर एग्जांपल फॉर फाउंडेशन की बात करते हैं 60, 50, 40 सेंटीमीटर वॉल ऑफसेट की बात करते हैं, 30 सेंटीमीटर वॉल ऑफसेट की बात करते हैं. तो ये सभी प्लान हमें ड्रॉ करना पड़ेगा. ओके, उसमें लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल डिसाइड करना पड़ेगा. उसके लेंथ कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल दैट मीन्स सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया था 4.3, उसमें 1 ब्रेथ ऐड करना पड़ेगा. दैट मीन्स 90 सेंटीमीटर. दैट मीन्स एक्सकेवेशन और फाउंडेशन कंक्रीट की बात कर रहे हैं तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, एक साइड 0.45 और दूसरी साइड अगेन 0.45. दैट मीन्स 1 ब्रेथ ऐड करना पड़ेगा. जबकि हम शॉर्ट वॉल की बात करते हैं तो हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है 3.3. उसमें से हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये ब्रेथ निकालना पड़ेगा बिकॉज ये लॉन्ग वॉल में पूरा आ गया.
ओके, तो हम किस कहाँ से ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले रहे हैं। ओके, तो हम इसमें भी क्या है, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम ले रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले रहे हैं, पर ये पोर्शन जो भी है ये वाला वो तो कैलकुलेशन में आ गया, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग वॉल। यहाँ पे भी ये जो वाला पोर्शन है वो भी कैलकुलेशन में आ गया, तो हमें क्या है जो बाकी रहता है वही कैलकुलेशन में लेना है अभी ये वाला। तो हम डिस्टेंस तो सेंटर लेते हैं, तो बाकी का जो भी लेंथ है वो डिडक्ट करना पड़ेगा। तो उसमें से क्या डिडक्ट करेंगे, वन ब्रेड्थ डिडक्ट करेंगे, दैट मीन्स शॉर्ट वॉल का लेंथ कैसे आएगा, तो हम जो भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ब्रेड्थ के लिए ले रहे हैं उसमें 0.45 हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो देखो excavation for foundation in ordinary soil up to 1.5 meter depth, long wall, center to center distance plus 1 width, तो 4.3 plus 0.9 इस excavation की बात हो रही है। तो excavation में foundation breadth कितनी है, 0.9। ओके, तो that is long wall। अगेन शॉर्ट वॉल, तो शॉर्ट वॉल में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस 1 ब्रेड, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 3.3 माइनस ब्रेड कितना है पॉइंट माइनस 0.9, तो कितना मिलेगा 2.4, दैट इज शॉर्ट वॉल। कितनी वॉल है फॉर फ्रॉम प्लान, 2 लॉन्ग वॉल्स है और 2 शॉर्ट वॉल्स है, तो नंबर इज 2। लेंथ हमने फाइंड आउट किया, ब्रेड कितना लेना है 0.3, डेप्थ कितना लेना है, तो जो फाउंडेशन की डेप्थ है 0.9 ओवरऑल वही लेना है। ओके, तो आपको एक क्वांटिटी मिलेगी। अगेन फाउंडेशन कंक्रीट की बात करें तो बीबीएलसी की बात करेंगे, तो बीबीएलसी में सेम टू सेम, तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, तो बीबीएलसी में भी वही लेंथ सेम टू सेम रहेगी, बिकॉज आप फाउंडेशन डिटेल में देख सकते हो जो एस्केवेशन की ब्रीथ है और बीबीएलसी की ब्रीथ है वो सेम है, इसीलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा लेंथ में। तो 5.2 2.4 ब्रेथ इज 0.9 पर डेप्थ चेंज होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको 0.3 डेप्थ बीबीएलसी का दिया है इसीलिए। ओके, तो आपको अगेन क्वांटिटी मिलेगी सेम सेकेंड क्लास ब्रिक वर्क फॉर द फाउंडेशन एंड प्लिंथ इन सीमेंट मोटर, तो लॉन्ग वॉल एंड फॉर शॉर्ट वॉल। तो फर्स्ट फुटिंग हम लेंगे, तो इसमें आपको फर्स्ट फुटिंग दिया है, दिस वन इज 60 वाला फर्स्ट फुटिंग है, 50 वाला सेकेंड फुटिंग है, 40 वाला थर्ड फुटिंग है। ओके, अप टू प्लिंथ, तो आपको फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फुटिंग लेना है। तो फर्स्ट फुटिंग में कितना ब्रेड्थ है 0.6, लॉन्ग वॉल में हमें हमेशा ब्रेड्थ ऐड करनी है और शॉर्ट वॉल में हमेशा ब्रेड्थ डिडक्ट करनी है। तो आपके पास सेंटर टू सेंटर लेंथ में कितना डिस्टेंस है 4.3 लॉन्ग वॉल के लिए, उसमें 1 ब्रेड्थ ऐड करो। तो फर्स्ट फुटिंग की बात करें 60 सेंटीमीटर, तो ब्रेड्थ कितना ऐड करना पड़ेगा 0.6। अगेन 4.3 है, उसमें कितना सेकेंड फुटिंग में कितना ब्रेड्थ ऐड करना पड़ेगा 0.5, एंड अगेन थर्ड फुटिंग में ब्रेड्थ कितना ऐड करना पड़ेगा 4.3 प्लस 0.4। अगेन शॉर्ट वॉल के लिए सेम टू सेम, आपके पास नंबर कितना है 2, लेंथ सभी में हमने फाइंड आउट किया, ब्रेड्थ हमारे पास है, डेप्थ हमें फाउंडेशन डिटेल्स पे से मिलेगा, टोटल यहाँ पे मिलेगा, जो भी मिलता है वो लिख दो। देन सेकेंड क्लास ब्रिक, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटर 1 जैम 6 फॉर द सुपर स्ट्रक्चर। तो अगेन उसके लिए क्या करना है, हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, तो लॉन्ग वॉल में ऐड करना है और शॉर्ट वॉल में उतना ब्रेड्थ क्या है डिडक्ट करना है, तो हमें लेंथ मिलेगा। ब्रेड्थ हमारे पास 0.3 है, डेप्थ इज क्लियर फ्लोर हाइट 3, दैट मीन्स दिस। Next, from the given plan, estimate the quantities of the different items of work by using the separate wall method. देन नेक्स्ट हम सेकेंड एग्जांपल लेंगे, उसमें आप देख सकते हो नंबर ऑफ टी जंक्शंस कितने मिलेंगे, यहाँ पे 1। ओके, नंबर ऑफ टी जंक्शंस है यहाँ पे, आप यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ टी जंक्शन इज 1।
एंड 2, पर इसमें नंबर ऑफ टी जंक्शंस का कैलकुलेशन नहीं आएगा। ओके, तो हमें सिंपली लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल डिसाइड करनी है। तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल डिसाइड करने के लिए लॉन्ग वॉल कौन सी हम ले सकते हैं? तो लॉन्ग वॉल इज दिस 2 वॉल्स एंड शॉर्ट वॉल इज दिस 3 वॉल्स। ओके, तो लॉन्ग वॉल में हम देखेंगे तो इसमें लेंथ कितना है लॉन्ग वॉल का, तो हमारे पास डायमेंशन है 3 पॉइंट हमें दे दिया है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें दे दिया है, दैट इज 3.3 एंड 5.3। तो हमें क्या करना है, 1 ब्रेथ ऐड करना है लॉन्ग वॉल में। तो क्या आएगा 8.6 प्लस 0.9, फाउंडेशन की बात हो रही है, तो 8.6 प्लस 0.9। ओके, तो 8.6 कैसे आया, तो 3.3 प्लस 5.3 कितना होगा, 8.6 होगा। तो 8.6 उसमें क्या कितना ऐड करना है, 1 ब्रेथ। तो हमें फाउंडेशन की बात करते हैं तो फाउंडेशन की ब्रेथ कितनी है, 0.9 है, इसीलिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 0.9, दैट मीन्स 9.5 मीटर। अगेन शॉर्ट वॉल की बात करें तो सेम टू सेम, तो ये पूरा पोर्शन कैलकुलेशन में आ गया। तो हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है, 5.3, उसमें से क्या डिडक्ट करना है, 1 ब्रेथ डिडक्ट करना है, दैट मीन्स 5.3 माइनस 0.9, दैट मीन्स 4.4 मीटर। नंबर कितना है, 1, 2 एंड 3। ओके, तो अगेन हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करना है, तो सेम टू सेम प्रोसीजर है। Okay, the earthwork in excavation for the foundation in ordinary soil up to 1.5 meter depth। तो ये स्मॉल डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो आप इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, आइटम जो भी है, आइटम का डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में है। ओके, देन हमें लॉन्ग वॉल की बात करनी है और शॉर्ट वॉल की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लॉन्ग वॉल की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमने आगे किया, तो क्या मिला, लेंथ इज 9.5 और 4.4, ब्रेड्थ कितना है, 0.9 और डेप्थ कितना है, तो वो हमें किससे मिलेगा, यहाँ पे आप जो भी आगे हमने फाउंडेशन प्लान लिया था उसका ही डेप्थ इसमें लिया है, 0.9। ओके, तो आपको एक क्वांटिटी मिलेगी। सेम टू सेम फाउंडेशन कंक्रीट की बात करें तो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में सेम टू सेम है, नंबर इज 2, शॉर्ट वॉल का नंबर इज 3, लेंथ सेम है, ब्रेड सेम है, डेप्थ सिंपली चेंज होगा, कौन सा फाउंडेशन देना है लेना है, फाउंडेशन डेप्थ किसका लेना है, तो जो भी हमने आगे प्लान देखा था उसका फाउंडेशन डिटेल लेना है। तो उसमें डेप्थ कितना दिया है, 0.3, तो इसका भी क्वांटिटी हमें मिलेगा। अगेन सेकेंड क्लास ब्रिक मशीनरी फॉर द फाउंडेशन एंड प्लिंथ इन सीमेंट मोर्टार। ओके, तो हमें क्या है, लॉन्ग वॉल के लिए करना है तो फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग, अगेन फर्स्ट फुटिंग, सेकेंड फुटिंग, थर्ड फुटिंग। तो नंबर लॉन्ग वॉल की बात करें तो नंबर सब में कितना आएगा, 2 नंबर, एंड शॉर्ट वॉल की बात करेंगे तो नंबर कितना आएगा, 3 नंबर। ओके, तो हमारे पास सेंटर टू सेंटर यानी टोटल सेंटर लाइन लेंथ है 8.6। ओके, तो लॉन्ग वॉल की सेंटर लाइन लेंथ हमारे पास है 8.6 और शॉर्ट वॉल की सेंटर टू सेंटर लाइन और सेंटर लाइन लेंथ कितनी है, 5.3। तो जिस फुटिंग की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट फुटिंग की बात कर रहे हैं, तो फाउंडेशन विड्थ कितना है, 0.6, तो वो ऐड करना है। अगेन सेकेंड फुटिंग की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स उसका विड्थ कितना है, 0.5, तो कितना ऐड करना है, 0.50। अगेन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारा 8.6 है और 40 सेंटीमीटर जो भी है, हम फुटिंग की 40 सेंटीमीटर थर्ड फुटिंग की बात कर रहे हैं जिसका विड्थ 40 सेंटीमीटर है, तो उसमें भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में कितना ऐड करना है, 0.40। तो नंबर सेम है, लेंथ हमें डिफरेंट मिली, ब्रेड्थ हमें पता है 0.6, 0.5, 0.4, डेप्थ डिफरेंट है 0.3, 0.3 और 40 सेंटीमीटर यानी कितना है, 0.6 है। ओके, तो हमें लॉन्ग वॉल के लिए मिलेगा। सेम टू सेम हम शॉर्ट वॉल के लिए करें तो शॉर्ट वॉल में भी सेम टू सेम ही है। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ शॉर्ट वॉल लेके उसमें से 1 ब्रेड्थ निकालना है।
ओके। तो 5.3 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। तो फर्स्ट फुटिंग की बात करें तो ब्रेथ कितना निकालना है 0.60। सेकेंड फुटिंग की बात करें तो ब्रेथ कितना निकालना है 0.50 एंड थर्ड फुटिंग की बात करें तो ब्रेथ कितना निकालना है 0.40। उस पे से हमें लेंथ मिलेगी। ब्रेथ हमारे पास है 0.6, 0.5, 0.4 और डेप्थ हमारे पास है 0.3, 0.3, 0.6। ओके, तो टोटल हमें क्या मिल जाएगा 18.59 मीटर क्यूब। अभी डीपीसी की बात करें तो डीपीसी दैट मीन्स व्हाट, डैम प्रूफ कोर्स। जो डीपीसी हम प्रोवाइड करते हैं वो कहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी हमें ब्रिक मैशनरी वर्क करते हैं उसमें डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। ब्रिक मैश जो भी फ्लोरिंग है ना, फ्लोरिंग जो भी वॉल है, फ्लोरिंग नहीं पर जो भी वॉल है उसमें बिलो फ्लोर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, डीपीसी। तो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की लेंथ हमारे पास है जो 30 सेंटीमीटर के लिए फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि ये लेंथ कैसे मिलेगी। ओके, तो सिंपली हमारे पास आप आगे की फाउंडेशन डिटेल देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अप टू प्लिंथ लेवल की वॉल थिकनेस कितनी है, 0.4 है। ओके, जो भी हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं तो जो भी हमारा प्लिंथ लेवल है उसके नीचे हम और उसके नीचे 0.15 मीटर थिकनेस में हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। ओके, दैट मीन्स फ्लो लेवल है उसके बिलो हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। फ्लो लेवल से 0.15 मीटर डेप्थ पे हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। दैट इज कॉल्ड डैम प्रूफ कोर्स। ओके, तो हमें क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास ये है नंबर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का है। देन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लॉन्ग वॉल का और शॉर्ट वॉल का कितना 8.6 है। और हम डीपीसी 40 सेंटीमीटर वॉल थिकनेस में प्रोवाइड करते हैं तो क्या ऐड करना पड़ेगा 8.6 प्लस 0.4, दैट मीन्स क्या आएगा 9 आएगा। और 5.3 माइनस 0.4 तो क्या आएगा 4.9 आएगा। ब्रेड कितना लेना है 0.4 लेना है। इसमें डेप्थ ले नहीं सकते, वो डीपीसी के जो भी डिस्क्रिप्शन होता है उसमें इंडिकेट किया होता है। और डीपीसी किस में मेज़र करते हैं, मीटर स्क्वायर में मेज़र करते हैं। ओके, तो इसका क्वांटिटी हमने फाइंड आउट किया। डिडक्शन, तो डोर पोर्शन हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। तो डोर पोर्शन हमें डिडक्ट करना पड़ेगा, तो डोर पोर्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डोर कितना है 2, लेंथ कितना है 1.2 और डेप्थ कितना है 0.4। ओके, दैट मीन्स डोर पोर्शन जो भी है उसके नीचे भी हमने डीपीसी, डोर कहाँ पे अटैच होता है, तो डोर हमेशा कहाँ पे अटैच होता है, तो वो भी वॉल में ही अटैच होता है। तो वहाँ पे भी हम क्या प्रोवाइड करेंगे, डीपीसी। ओके, तो डोर पोर्शन में जो भी लेंथ है, लेंथ यहाँ पे हम क्यों डिडक्शन दे रहे हैं डोर का, बिकॉज डोर के नीचे डीपीसी नहीं आएगा इसलिए हम डिडक्शन दे रहे हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ बात करें, प्लान की बात करें, तो आपके पास ये प्लान है। तो यहाँ पे जो भी हमने डीपीसी प्रोवाइड किया है तो इतने तक डीपीसी नीचे नहीं आएगा, बिकॉज वहाँ पे क्या आएगा, डोर फ्रेम आएगा नीचे, इसीलिए हम वहाँ से डीपीसी हमें डिडक्ट करना पड़ेगा डोर डी के लिए। ओके, तो यहाँ जो भी डोर पोर्शन है उसमें डीपीसी हम डिडक्ट करेंगे। ओके, तो कितना है डीपीसी, नंबर ऑफ डोर कितना है 2 है, लेंथ 1.2 है, ब्रेड्थ 0.4 है। ओके, तो 1.2 और 0.4 डेप्थ के लिए, ब्रेड्थ के लिए, ब्रेड्थ इज 0.4 और लेंथ इज 1.2, तो उतने पोर्शन में डीपीसी नहीं आएगा, तो इसीलिए हमें वहाँ पे डिडक्शन देना पड़ेगा। तो कितना मिलेगा 12.12 मीटर स्क्वायर। अगेन फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क फॉर द सुपर स्ट्रक्चर, सेम टू सेम पोर्शन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं,
सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारे पास है, एक में 1 ब्रेथ ऐड करते हैं लॉन्ग वॉल में, और शॉर्ट वॉल में क्या करते हैं 1 ब्रेथ डिडक्ट करते हैं। नंबर हमारे पास है, देन ब्रेथ हमारे पास है, लेंथ हमने फाइंड आउट किया, डेप्थ हमारे पास है, 3 क्लियर फ्लोर हाइट है। ओके, तो और यहाँ पे क्वांटिटी मिलेगी 29.52 मीटर स्क्वायर। डिडक्शन करना पड़ेगा, तो डोर और विंडो का डिडक्शन करना पड़ेगा। ओके, सेम यहाँ पे क्या है, सिंपल प्लान दिया है। ओके, तो कई क्वांटिटी इसमें इंक्लूड नहीं की है। ओके, पर इसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो दिखाया है सिंपली। तो इस ये प्लान में हम देखें तो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो 20/30 का जंक्शन आता है। 20/30 यहाँ पे जॉइनिंग वॉल है 20। तो हमें लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल पहले तो डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन सी लॉन्ग वॉल है। तो यहाँ से ये वॉल और यहाँ से ये वॉल, दो लॉन्ग वॉल ले सकते हैं। शॉर्ट वॉल कितनी है 30 की 2 है, और 20 की कितनी है 1 है। तो लॉन्ग वॉल का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे, तो क्या है यहाँ पे, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है 8.5 है, उसमें 1 ब्रेथ ऐड करेंगे तो 1 ब्रेथ कितना, अभी फाउंडेशन की बात कर रहे हैं तो 1 ब्रेथ में क्या आएगा 0.9 आएगा, तो क्या आएगा 9.4 मीटर, और नंबर कितना आएगा उसका 2 आएगा। शॉर्ट वॉल की बात करें तो 30, तो हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है 5.3 है, उसमें से क्या है 1 ब्रेथ हमें निकालना है, दैट मीन्स 0.9 निकालना है, तो क्या मिलेगा 4.4। और 20 की बात करें तो सेम टू सेम 5.3 माइनस 0.9, तो सेम टू सेम 4.4 मिलेगा। तो अगेन हमें क्या करना है नेक्स्ट, तो अगेन एस्टिमेट फाइंड आउट करना है। तो अर्थ वर्क इन द एक्सकेवेशन फॉर द फाउंडेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल अप टू 1.5 मीटर डेप्थ। ओके, आपको मोड्स ऑफ मेजरमेंट में हमने पढ़ा था कि 1.0 टू 1.5 मीटर की फाउंडेशन की डेप्थ है, तो उसके लिए कैलकुलेशन अलग होता है। 1.5 मीटर से आगे बढ़ जाता है एक्सकेवेशन का डेप्थ, तो उसके लिए अलग कैलकुलेशन करना पड़ता है। ओके, पर यहाँ पे फाउंडेशन डेप्थ इज 1.5 मीटर से कम है, तो उसके लिए अलग से कैलकुलेशन देना नहीं पड़ेगा। ओके, तो अगेन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल हमने जो भी लेंथ फाइंड आउट की थी यहाँ पे रख दिया। ओके, उसका डेप्थ और हाइट कितना है, तो एक्सकेवेशन में डेप्थ 0.9 और इसका डेप्थ कितना है 0.6। तो 20 सेंटीमीटर वॉल होती है, 20 सेंटीमीटर वॉल होती है, उसमें एक्सकेवेशन डेप्थ डिफरेंट होती है। तो कितनी है 0.6 है, और इसमें एक्सकेवेशन डेप्थ कितनी है 0.9 है। ओके, तो 1 4.4 0.7 0.6। ओके, तो आपके पास ये लेंथ तो मिल गई, ब्रेथ 0.7 है, डेप्थ 0.6 है, तो आपको एक क्वांटिटी मिलेगा। सेम फाउंडेशन कंक्रीट है, तो अगेन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल वो सब लेंथ सेम आएगी, ब्रेथ भी सेम आएगी, सिंपली लेंथ में डेप्थ में चेंज होगा 0.3 0.3 0.3। अगेन सेकेंड क्लास ब्रिक वर्क इन मशीनरी, तो फर्स्ट फुटिंग सेकेंड फुटिंग थर्ड फुटिंग। शॉर्ट वॉल 30 के लिए, शॉर्ट वॉल 20 सेंटीमीटर के लिए, तो वो अलग अलग आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है 8.5 प्लस 0.6 0.5 0.4 5.3 माइनस 0.6 माइनस 0.5 माइनस 0.4 एंड अगेन 5.3 माइनस 0.5 एंड माइनस 0.4, दैट मीन्स 2 ही फुटिंग होगा, इसमें 2 फुटिंग ही होगा। ओके, इसका फाउंडेशन प्लान यहाँ पे हमें दिया नहीं है। ओके, तो इसमें 2 ही फुटिंग होंगे। ओके, 0.5 0.4 5.3 सेंटर सेंटर है, तो डेप्थ हमें कितना लेना है 0.3 0.6। ओके, तो हमें क्वांटिटी कितनी मिलेगी 17.19 मीटर स्क्वायर। हम आगे दूसरा एस्टिमेट लेंगे जिसमें हमें ज़्यादा पता चलेगा। ओके, 2.50 सेंटीमीटर थिक डीपीसी, तो सेम टू सेम। ओके, नंबर ऑफ डोर कितना है, देन 1 पॉइंट लेंथ कितना है 1.2, ब्रेथ कितना है 0.4। तो यहाँ पे भी 2.5 मीटर थिक डीपीसी किसमें प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग वॉल में शॉर्ट वॉल में। तो जो भी हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया है उसमें एक में लॉन्ग वॉल में ऐड करना है, और शॉर्ट वॉल में क्या करना है उतना ब्रेथ डिडक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी मिलेगी। फर्स्ट क्लास ब्रिक मशीनरी फॉर द सुपर स्ट्रक्चर, लॉन्ग वॉल है शॉर्ट वॉल है, देन शॉर्ट वॉल 30 मीटर की है, लॉन्ग वॉल है शॉर्ट वॉल है
20 मीटर, शॉर्ट वॉल है 30 सेंटीमीटर की है और सेकेंड शॉर्ट वॉल है वो 20 सेंटीमीटर की है। दोनों का फाउंडेशन डिटेल अलग अलग होता है। ओके, तो डिडक्शन फॉर द ओपनिंग सेम टू सेम, हमारे पास नंबर कितना है, लेंथ ब्रेड्थ 0.3 एंड डेप्थ इज 3। ओके, same to same again, short wall length is 5, breadth 0.3 and depth is 3। अगेन शॉर्ट वॉल 20 सेंटीमीटर 5.2.3 आपको क्वांटिटी मिलेगी। डोर्स एंड विंडोज़ की जो भी क्वांटिटी है वो डिडक्ट करना है। ओके, थैंक यू।